Hello students, welcome again to video online class. Students, today we will discuss the topic education and economics and their relationship. So this topic is taken from the 7th paper, Historical, Political and Economic Perspective of Education. And from that paper, unit 4, that is economic perspective. And from that unit, bullet 1, or we may say the first subtopic, that is education and economics and their relationship. So students, a country's economy becomes more productive as the proportion of educated workers increases. Productive as the proportion of educated workers increases. How it is increases, students? Since educated workers can work more efficiently and they can carry out the task which requires the particular task require the literacy, efficiency and the critical thinking. As a result, many countries provide funding for primary and secondary education to improve economic performance, so that if the economic performance is better, then the country's economic condition will be automatically become progressive. So स्टूडेंट्स यहाँ शिक्षा को अर्थव्यवस्था से इस तरह से जोड़ा गया है या कहा गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था और अधिक उत्पादक हो जाती है जबकि शिक्षित श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक जो हैं वो शिक्षित होते हैं और शिक्षित श्रमिक ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें साक्षरता, एफिशिएंसी या क्रिटिकल थिंकिंग या हम कह सकते हैं आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, बहुत से देश या हम कह सकते हैं ज़्यादातर देश आर्थिक निष्पादन में सुधार के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। Now, education, economics or the economics of education. Education, economics or the economics of education is the study of economic issues relating to education, including the demand for education, the financing and provision of education, and the comparative efficiency of various educational programs and policies. From the early works on the relationship between schooling and labor market, outcomes for the individual, the field of the economics of education has grown rapidly. And it has grown rapidly to cover virtually all areas with linkage to education. So students,
एजुकेशन इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, और वी में से शिक्षा अर्थशास्त्र शिक्षा से संबंधित आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है। शिक्षा से संबंधित आर्थिक मुद्दों का अर्थात धन से संबंधित, पूंजी से संबंधित या अर्थ से संबंधित आर्थिक मुद्दों का अध्ययन है, जिसमें शिक्षा की मांग, शिक्षा का वित्त पोषण और प्रावधान तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और नीतियों की तुलनात्मक दक्षता शामिल है। स्कूली शिक्षा और श्रम बाजार परिणामों के बीच संबंधों पर प्रारंभिक कार्यों से शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, ताकि शिक्षा के संबंध में लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके। The economic systems and its development is essentially connected with the educational system. यहाँ क्या कहा गया है कि economic system and its development is essentially connected with the educational system, because knowledge is the basis of any education system. यहाँ ये माना गया है कि किसी भी नॉलेज जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम का आधार है। टू अचीव क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू सिस्टम्स, economic system and education system. So these two systems, management is necessary to meaningfully connect them. अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि आर्थिक प्रणाली और उसका विकास शिक्षा प्रणाली से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान किसी भी आर्थिक प्रणाली का आधार है और इन दोनों प्रणालियों के प्रबंधन के बीच, इन दोनों प्रणालियों मतलब शिक्षा प्रणाली और आर्थिक प्रणाली, तो इन दोनों प्रणालियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है ताकि उन्हें सार्थक रूप से जोड़ा जा सके। So students, we always say कि education for the sake of education या शिक्षा के लिए है। अब ये कहावत जो है वो पुरानी हो चुकी है। कुछ समय पहले तक हम शिक्षा के लिए ही महत्व देते थे और शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया या शैक्षिक प्रक्रिया को मूल्यवान भी समझते थे। अर्थात क्यों हम इसको मूल्यवान समझते थे? क्योंकि ये मानव के बौद्धिक शक्तियों को उन्नत करने, कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए, पर्सनैलिटी ट्रेट को उत्पन्न करके पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, और सबसे बड़ी बात स्वयं अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए करते थे। इस प्रकार शिक्षा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी या अनुत्पादक क्रिया समझी जाती थी तथा शिक्षा प्राप्त करने में जो धन व्यय होता था उसमें लोगों की एक भावनात्मक स्वीकृति जुड़ी रहती थी। जैसे उदाहरण स्वरूप हम अगर कह सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने बाहर जाकर हायर एजुकेशन गेन किया, बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त की और देश में
वापस आकर आगे उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने उन सभी को आगे अपना जीवन देशवासियों के प्रति समर्पित कर दिया। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने भी अब बाहर इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने अपनी शिक्षा का सदुपयोग अपने देशवासियों की भलाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगा दिया। स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्ट्री में पहले शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शामिल हुआ करता था, जिसे कुछ वर्षों पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम दे दिया गया है। और आज भी हम इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास के रूप में ही जानते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जानते हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा के विभिन्न अंगों, मतलब वेरियस पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, कार्यक्षेत्रों, विभिन्न कार्यक्षेत्रों, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एवं संचालन, ऑपरेशंस का कार्य ही देखते थे। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का कार्य था कि वो शिक्षा से संबंधित विभिन्न उसके अंगों, उसके कार्यक्षेत्रों तथा उसके संचालन से संबंधित कार्यों को देखना। परंतु आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन जाने के बाद यह माना जाने लगा कि जिस प्रकार प्रोसेस डेवलपमेंट या विकास की प्रक्रिया में धन एक पूंजी है, उसी प्रकार मानव भी एक पूंजी ही है। जिस प्रकार पूंजी, या हम कह सकते हैं कि धन के अभाव में आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का विकास संभव नहीं है, या हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास धन नहीं होगा, आर्थिक रूप से हम सबल नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार का विकास होना असंभव है, या हम कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुप्रशिक्षित, कर्मठ एवं ईमानदार मानवीय संसाधन के अभाव में शैक्षिक तथा अन्य विकास जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि की कल्पना करना भी असंभव है। हम धन के अभाव में या आर्थिक रूप से सबल ना होने पर इन सब के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की शिक्षा और अर्थशास्त्र में कितना प्रगाढ़ संबंध है। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि मानव को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए अर्थ तथा शिक्षा दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्थात शिक्षा के साथ धन का होना भी आवश्यक है और धन के साथ शिक्षा का भी होना आवश्यक है। अब अर्थ जो है, अर्थ या धन मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का आधार है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने मानव को एक पूंजी या धन के रूप में स्वीकार किया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या फेमस इकोनॉमिस्ट मार्शल ने
एक स्टेटमेंट दिया है मानवीय संसाधन से संबंधित। उन्होंने मानवीय संसाधन के विकास की महत्ता को बताते हुए, उसको स्वीकार करते हुए कहा है कि मनुष्यों पर लगाई गई पूंजी या अन्य सभी पूंजियों की अपेक्षा सर्वाधिक मूल्यवान होती है। The most valuable of all the capital is that invested in human beings. इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अब अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स केवल धन का शास्त्र ही नहीं है, बल्कि उसका संबंध मानव धन से भी हो गया है। मानव को शिक्षित करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया जाता है और इसलिए अब मानव के कल्याण तथा उसे एक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन तथा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स आपस में संबद्ध हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन इज इंटर रिलेटेड, आपस में संबद्ध हैं, उनमें प्रगाढ़ संबंध है। So student, I am concluding this topic here. Next we will study the next